Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's maths lecture number 12, class 8, presented by Ms. Rakhshi Ramzan, SS Mathematics, in Division Public School and College Sahiwal. Today, our learning objectives are: by the end of this lesson, you will be able to find the square root of decimal by division method. Students, you already know about square root of decimal number. In previous classes, you have learned the method of finding square root of a rational numbers by prime factorization and division method. Students, this prime factorization method is used for finding the square root of smallest number, while the division method is very useful to find out the square root of larger number. And today we are going to discuss and learn square root of decimal number by division method. In chapter number 2, real numbers, today we will discuss exercise 2.5, question number 2, 1 to 6 parts. Students, square root by division method. How can we find the square root by division method? To find the square root by division method, we should keep the following steps in our mind. We will see what are these steps. Students, for using this method, the following steps will be taken. First, we have to make pairs of digits on left side of decimal point from right to left. Now make pairs of digits on right side of decimal point from left to right. Now place the decimal point in the quotient while bringing down the pair after decimal point. While bringing down two pairs at a time, place a 0 in the quotient. We can understand by using this decimal number. We have a decimal number 648.7209. So this is a decimal number. Now we have two parts of decimal number. First is whole part and the second is decimal part. You know about whole part and decimal part. Today I will tell you how to make the pair from whole part and decimal part. बच्चों, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 648 जो है ये नंबर हमारे पास होल पार्ट है. तो जब हम इनकी पेयरिंग करते हैं तो हमने डेसिमल की पोजीशन को देखते हुए हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, यानी हमने राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाने हैं. सिमिलरली हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास 7209 ये हमारे पास डेसिमल पार्ट है. जब हमने इनकी पेयरिंग करनी है तो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अब इन सबको क्वेश्चंस की मदद से समझते हैं. चलिए देखते हैं. हमारे पास है एक्सरसाइज 2.5 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 को आज डिस्कस करना है और उसमें हमें दिया गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड. चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, हियर वी हैव गिवन अ नंबर डेसिमल नंबर or we have to find the square root of this decimal number 0.3249. First we write this number in square root. Okay, first we write the number in square root. Now we will see here is a decimal point and here is a pair of number is 32 and 49. Now students, 32 is not a perfect square. You can see here is 32 is not a perfect square. So what we find, what we do, we will first write the table of perfect square of natural number. First we write 1 multiply 1 is equal to 1. We will see here 2 multiply 2 is equal to 4 and 3 multiply 3 is equal to 9 and 4 multiply 4 is equal to 16 and 5 multiply 5 is equal to 25 and 6 multiply 6 is equal to 36. हम यहाँ ये देखना चाहते हैं बच्चों कि ये जो 32 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हम ये करते हैं कि इसके नजदीक और नियरेस्ट नंबर लेकर आते हैं. जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 16, 25 और 36. 36 तो 32 से बहुत बड़ा है
तो हम क्या करते हैं, हम 25 को लेते हैं। अगर हम 16 को लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो हमारे पास करीबी नंबर क्या है 25। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम 5, फिर हम उसे क्या करेंगे, डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे क्वोशिएंट में, और उसी 5 से जो हमने यहाँ लिखा है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपने यहाँ देखा जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 25। इस 25 को हम 32 के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 32 के नीचे 25। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7, और साथ ही हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर है 49 उसे भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा नंबर 749। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास 5 है इसमें हम 5 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। बच्चों अब आपने 10 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो वो कंप्लीट 749 आ जाए रिक्वायर्ड नंबर, और या फिर उससे स्मॉलेस्ट नंबर आए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर है कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये कंप्लीट आंसर आता है। देखें आप, जब हम 10 के साथ 1 लिखते हैं तो हमने ये बात याद रखनी है, हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे कि 101 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 101। जब हमने इसी 10 के साथ 2 लिखा तो हमारे पास नंबर हो गया 102, हमने उसी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 204। सिमिलरली देखें आप, 103 और हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 309, 104 तो हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई किया 416, 105 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 525, जब हमने 106 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 636, और जब हमने 107 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 749। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास ये सारी नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ नेचुरल नंबर खुद भी लिख रहे हैं। ठीक है, फिर जब हमने 107 के साथ 7 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आता है 749। तो हम यहाँ 749 रिप्लेस करेंगे और जब हम उन्हें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.3249 का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.57। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें हमारे पास एक नंबर दिया गया है और वो नंबर है 0.5184। हमने उसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे स्क्वायर रूट की प्लेस में लिखते हैं। ये हमने लिखा 0.5184। अब यहाँ सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो डेसिमल पार्ट में हमारे पास नंबर दिया गया है 51, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी नियरेस्ट वैल्यू लेकर आएंगे और हम देखेंगे कि जब हमने इन टेबल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमने देखा कि जब हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 होता है तो 1, और जब हम 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 9, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 16, और जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आंसर आता है 25। अब 6 को 6 से किया तो हमारे पास आंसर आता है 36। जब हमने 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 49। तो बच्चों आप देख सकते हो कि 36 और 49 नियरेस्ट जो नंबर है वो हमारे पास है 49। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 7 रिप्लेस करेंगे और 7 को क्वोशिएंट के साथ 0 पॉइंट को हम इसलिए यहाँ लाएंगे, हम सबसे पहले डेसिमल को शिफ्ट करते हैं, फिर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 49। अब बच्चों अब आपने क्या करना है कि 51 में से 49 माइनस करना है। जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2, और साथ ही हमने ये पेयर भी साथ ही नोट डाउन कर लेना है। बच्चों अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है कि जब हम इसमें 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। अब 14 के साथ एक ऐसा नेचुरल नंबर हमने लेना है जो कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये कंप्लीट आंसर दे या इससे नियरेस्ट वैल्यू दे। अब आप देख सकते हो कि जब हमने 14 के साथ फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी 1 लिखा और 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 141। जब हमने 14 के साथ 2 लिखा सेकंड नेचुरल नंबर तो और हमने उसी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 284। इट्स मीन ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, यानी हमारे पास ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसका आंसर आता है। जब हम 2 यहाँ लिखेंगे तो हम क्वोशिएंट में भी 2 लिखेंगे और जो उसका रिक्वायर्ड नंबर है उसे हम यहाँ लिखेंगे 284 को, फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 0.5184 इज इक्वल टू 0.72। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम इसी तरह हम एक और पार्ट देखते हैं
जो कि एक्सरसाइज 2.5 का 4 पार्ट है। इसमें बच्चों हमारे पास नंबर दिया गया है 20.5209। हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। सबसे पहले हम इस नंबर को हम स्क्वायर रूट में रिप्लेस करते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया 20.5209, आप देख सकते हो 20 क्योंकि होल नंबर है, तो हमने क्या किया कि ये 20 जो है इसको हमने देखा कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 20 के क्लोजेस्ट जो नंबर है, नियरेस्ट नंबर, यानी हम उसे लेकर आते हैं। तो हम उसे कैसे लेकर आएंगे, हम सबसे पहले जो हमारे पास टेबल ऑफ परफेक्ट और नेचुरल नंबर का होता है, हम उसे लिखते हैं कि हमारे पास ये टेबल है ना परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का, तो हम उसे लिखते हैं और उससे में से फाइंड आउट करते हैं कि 20 के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है। सबसे पहले हमने जब लिखा तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, और 2 × 2 हमारे पास इज इक्वल टू 4 है, और 3 × 3 इज इक्वल टू 9 है। यानी जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 16, और जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है 25। इट्स मीन कि हमारे पास 25 तो बहुत बड़ा है, तो हमारे पास नियरेस्ट कौन सा हुआ 16। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 4, और हमारे पास क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या आएगा 4, और हम जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड आएगा नंबर 4, और उसके साथ ही हम साथ ही नेक्स्ट जो पेयर है उसे भी साथ ही लिख लेंगे। अब अगला स्टेप में क्या करना है, हमने जो हमारे पास यहाँ पर 4 है उसको हम 4 में प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 8। अब बच्चों हमने 8 में चेक करना है कि हम 8 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लिखें जो कि 452 या तो वो रिक्वायर्ड नंबर दे या उसके क्लोजेस्ट नंबर दे। अब आप देख सकते हो कि जब हमने 8 के साथ फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 लिखा और उसी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 81। जब हमने उसका सेकंड नेचुरल नंबर 2 लिखा तो हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 164। जब हमने थर्ड नेचुरल नंबर लिखा और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 249। और इसी तरह जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 4, और फिर 4 से ही हमने 8 के साथ 4 लिखा और 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 336। सिमिलरली हमने जब 5 लिखा तो 5 से ही मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 425। हम देख सकते हो किस तरह जब हमने 8 के साथ 6 लिखा और 6 से मल्टीप्लाई किया 516 आ गया। बच्चों ये जो 516 है ये तो बहुत बड़ा है, तो हमें क्या चाहिए उसकी करीबी वैल्यू, और करीबी वैल्यू हमारे पास क्या है 425। तो हम 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 425। तो हम यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है, और उसके साथ ही हम डेसिमल को भी क्वोशिएंट में रिप्लेस कर देंगे और साथ में 5 लिखेंगे, ठीक है, जो हम मल्टीप्लाई करें। अब हम जब 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 425। अब हम इनको क्या करेंगे 452 में से 425 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आएगा 27। और साथ ही बच्चों हमने ये जो नेक्स्ट हमारा लास्ट पेयर रह गया था उसको भी हमने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। फिर हम जब क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को यानी 85 को 5 में जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 90। अब हमने फिर एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसको हम यहाँ रिप्लेस करें तो हमारे पास ये कंप्लीट आंसर आ जाए, ये इसके नियरेस्ट आ जाए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 से हमने 90 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 901। जब हमने 90 के साथ सेकंड नेचुरल नंबर लिखा और 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 1804। जब हमने 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया और साथ ही 3 से हमने लिखा भी और मल्टीप्लाई भी किया तो आंसर आता है 2709। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि 90 के साथ जब हमने 4 लिखा और 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3616 आते हैं। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ हमने लिखनी है नेचुरल नंबर, और जो भी हमारा ऐड करने से नंबर आता है हम उसके साथ नेचुरल नंबर लिखते हैं और उसी के साथ उस नंबर के साथ ही हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। चलो बच्चों, अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो है 2709 इसमें मौजूद है। यहाँ हमने देखा कि जब हम 903 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2709। इट्स मीन कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर 3 से मल्टीप्लाई करने से आता है। तो जो जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है वो हम यहाँ रिप्लेस करेंगे 90 के साथ, और क्वोशिएंट में भी हम 3 ही लिखेंगे। जब हम 3 क्वोशिएंट में लिखेंगे तो हमारे पास इसका मतलब है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2709। यानी हमने 903 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 2709। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हमारे पास स्क्वायर रूट है 20.5209 उसका आंसर आता है इज इक्वल टू 4.53। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा काफी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
देखें आज हमने क्या सीखा। आज हमने बच्चों सीखा है कि हमने टुडे वी हैव लर्न द मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब आपकी असाइनमेंट का टाइम है। आपने होम असाइनमेंट में इसी एक्सरसाइज जो हमने आज डिस्कस की है, उसके 2.5 को हमने डिस्कस किया आज, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया, जिसमें से हमारे पास 3rd और 5 पार्ट है, जिसे आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, और उसे सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।